starting with Medha and Radha question. Krutika had been admitted, right? आपने ये फॉर्मेट बना के रखना चाहिए. This format you should prepare, keep it ready. क्वेश्चन में पूछा गया है prepare profit and loss adjustment account. You must understand profit and loss adjustment account is same as revaluation account. तो देखो मैंने revaluation के बाजू में ब्रैकेट में लिखा है profit and loss adjustment. आप लोग भी देखो विद डिफरेंट कलर पेन ताकि आपको याद रहे. जो पूछा है वो हमें प्रेजेंट करना है. दैट इज ऑलवेज बेटर. See, many a times क्या होता है that we have to satisfy the requirement of the question setter. उसकी ईगो को हर्ट नहीं करने का. उसको ये नाम चाहिए, ये नाम दे दो. हमें मालूम है मीनिंग सेम है, राइट? So profit loss adjustment is your nominal account, revaluation account. Continue. चलो मैं आइडेंटिफिकेशन चालू कर रहा हूं बच्चों. बैलेंस शीट ऑफ मेधा राधा हु शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1 is as below. We are given balance sheet 31st March 18. We have liabilities में creditor, bills payable, bank overdraft, capital of Medha Radha, general reserve. If you remember, general reserve refers to accumulated profits. Unless otherwise specified, it should be distributed to old partners in old ratio. Cash, debtor, stock, plant and machinery, furniture, land and building. They decided to admit Krutika on 1st April on the following terms. Krutika is taken as partner on 1st April. She will pay 40,000 as her capital. Okay. Capital brought in. Entry याद करो. Cash bank account debit to incoming partners capital account. 1/5 share in future and 2,500 as goodwill. ये continuation में है. माने goodwill is also brought in cash. When goodwill brought in cash, what entry we pass? Cash bank to goodwill. Goodwill to old partner in sacrificing ratio. 5% provision for bad debt, put a dot on debtor. Furniture depreciated, put a dot. Stock appreciated, put a dot on stock. Plant and machinery 20%, put a dot. The capital accounts of all partners be adjusted in their new profit sharing ratio by adjusting the amount through loan. माने यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट है. अंडरलाइन कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर. आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट है. The new profit sharing ratio will be respectively 3/5, 1/5, 1/5. माने 3:1:1. You are required to prepare profit loss adjustment account. That is nothing but revaluation account. This is revaluation account. Partners capital and balance sheet of the new firm. So I want you to go ahead with the calculation of new ratio दिया है, लेकिन sacrificing ratio यहाँ पे will not be same as the old ratio. Whenever new ratio is specifically given in the question, then you have to calculate sacrificing ratio, and sacrificing ratio will be equal to old ratio minus new ratio. ऐसे आपको समझना पड़ेगा. तो पहला वर्किंग बिलो द फॉर्मेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो. चलो शुरू करो, स्टार्ट करें. ट्राई किया एनीबडी? ट्राई किया? क्या आंसर आया? ओके, सो आई एम डिस्प्लेइंग इट टू यू. Sacrificing is old ratio minus new ratio, as you can see on the board. Old ratio Medha 3/4, Radha 1/4, new ratio 3/5, 1/5. LCM लूंगा 5 into 4 20. न्यूमरेटर में 20 बनाने के लिए 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आएगा, और यहाँ पे राइट साइड में 3 को मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो 12 आएगा. ये बचपन में किया है ना बच्चों, मैथमेटिक्स में अप्लाई किया है ना.
So answer will be 3/20. डिटेल में बताऊं क्या ये कैलकुलेशन? हाँ चलो ओके, तो यही चीज मैं डिटेल में करता हूं यहां पे। मुझे 3/4 माइनस 3/5 करना है। हाँ, इसको मैं जरा डिटेल में जाता हूं, एक बार बताऊंगा, ध्यान से समझ लो। इफ यू वांट यू कैन रेफर दिस वीडियो ऑल्सो। मुझे एलसीएम चाहिए 20। 20 कैसे आया? ये 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 3/4 है ना, 3/4 को मैंने 3/4 था, मैंने डिनोमिनेटर में 20 लिया है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? मुझे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। सो 3 इंटू 5, नीचे 4 इंटू 5 तो मैंने ऑलरेडी कर लिया 20 लाने के लिए, माइनस बाजू वाले में 3/5 है, तो मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 4/4, सो 3 इंटू 4 करना पड़ेगा। नहीं समझा? और डिटेल में बोलूं? और डिटेल 3/4 को मुझे 20 चाहिए डिनोमिनेटर में, तो मैंने क्या किया? 3/4 को मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 5/5, माइनस 3/5 को डिनोमिनेटर में 20 चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 4/4। अब चेक करो, नीचे 20 कॉमन आ गया, और 3 इंटू 5 विल बी 15 एंड 3 इंटू 4 विल बी 12। यही चीज मैंने यहां पे लिखा है, 15 माइनस 12। हाँ, अभी इसी को मैं कंप्लीट कर लेता हूं ताकि काम कंप्लीट हो जाए। सो दिस विल बी लाइक 15 माइनस 12 अपॉन 20। आंसर वुड बी 3/20। ऐसे ही डिटेल में ये भी कर लेता हूं, 1/4 1/5। सो ये 1/4 माइनस 1/5, मुझे डिनोमिनेटर में 20 चाहिए, तो 1/4 इंटू 5/5, बोथ द साइड्स मल्टीप्लाई बाय 5/5, माइनस 1/5 डिनोमिनेटर 20 चाहिए, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 4/4, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5/20। कॉमन ले लेता हूं 20, 5 माइनस 4 1 जा 4, सो द आंसर इज 1/20। तो 3/20 1/20, अल्टीमेटली न्यूमरेटर रेशियो विल बी 3:1। ये मैंने डिटेल में किया, राइट? आप चाहो तो डिटेल भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो ये शॉर्टकट भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा, वो अलग बात है दैट ये आपका अल्टीमेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 आ रहा है, विच इज हैपनिंग टू बी सेम एज द ओल्ड रेशियो। हाँ, ये कोइंसिडेंस यहाँ पे हो रहा है, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन, यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बट व्हेन बैलेंस ऑफ वन मेथड वी आर फॉलोइंग, आप अज्यूम कर सकते हो सैक्रिफाइसिंग विल बी सेम एज द ओल्ड रेशियो। ये फंडा आपको समझ गया, लिख लो। क्लियर है? राइट इट डाउन, नोटबुक में राइट इट डाउन, फॉर्मेट के नीचे लिख। सो इसके बाद में मैं और आगे जा रहा हूं। लेट अस स्टार्ट विद द पोस्टिंग पार्ट। हमने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, आप लोग ने भी बनाया है। लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टिंग। लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करता हूं। जहां जहां पे भी डॉट है वो इनर कॉलम में, डॉट नहीं है वो आउटर कॉलम में। चलो, क्रेडिटर 80,000, bills payable 20,000, bank overdraft 20,000, all are with me? We are given capital account balances, so मैंने capital account भी बनाया है। Balance brought down 1,20,000 and 40. जनरल रिजर्व अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होता है, एंड वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इट इज अप टू द डेट ऑफ एडमिशन, सो दैट बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर।
ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, राइट। सो मैं यहां पे रिजर्व लिखने जा रहा हूं, ओल्ड रेशियो 3:1, वेरीफाई। कितना दिया है 16, 3:1, 3+1 को ऐड करेंगे तो 4 होगा। 16 को पहले मेंटल प्रैक्टिस करो, 16,000 को पहले 4 से डिवाइड करो तो आंसर विल बी 4 फॉर 1 यूनिट, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 1, काम हो गया आपका। सो 4 3 are 12 एंड 4 1 are 4, सो 12 एंड 4। देखो टोटल करके चेक कर लेने का, 16 हुआ कि नहीं हुआ, 12 + 4 is 16। ऐसे बहुत सिंपल है, मैथमेटिक्स आप अप्लाई कर सकते हो। लायबिलिटी साइड डन, एसेट साइड फटाफट लिख बेटा, बी क्विक। सबसे पहले आना बेटा दिवेश, फॉर्मेट बना लेने का। तू फॉर्मेट नहीं बना रहा है, यू विल ऑलवेज बी देन बिहाइंड मी। सबसे पहले मैं जब टाइम देता हूं फॉर्मेट बनाने का ना, तुम लोग मिसलिनियस एक्टिविटी करते हो, दैट यू शुड नॉट डू। चलो मैं आगे जा रहा हूं, बैलेंस शीट, एसेट साइड। ओके कैश लिख लेता हूं मैं, कैश ओपनिंग बैलेंस गिवन 78,000, 78,000। अदर असेट्स, डेटर इनर कॉलम क्योंकि डॉट किया, 1.1 लाइन, स्टॉक इनर कॉलम, प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम, फर्नीचर इनर कॉलम, लैंड एंड बिल्डिंग नो डॉट आउटर कॉलम, पूरा बैलेंस शीट मैंने पोस्टिंग कर लिया है। मैं सब आपको साथ में डिस्प्ले कर रहा हूं ताकि किसी का भी अगर कुछ रह गया है लिखना तो आप वेरीफाई कर सकते हो, चेक करो। फुल बैलेंस शीट ट्रांसफर। दिवेश ऐसे पहले फॉर्मेट रेडी होना चाहिए, स्टेप टू स्टेप काम करो तो बहुत आसान हो जाएगा लाइफ आपका। क्लास में टाइम से 10 मिनट पहले आने का, 2 फॉर्मेट रेडी रखने का। आप लोग को मालूम है सर मिनिमम 2 क्वेश्चन तो करवाने ही वाले हैं, 2 का 3 भी हो सकता है, मिनिमम तो 2 होगा, है कि नहीं। डन है, फुल बैलेंस शीट डन। नाउ आई एम गोइंग ऑन द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट गिन के आपका 3 एडजस्टमेंट होने वाला है, गिन के। एक आपका कैपिटल ब्रॉट इन होगा, एक गुडविल होगा, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स होगा, और फोर्थ ये क्वेश्चन में है, अगर होगा तो होगा कैपिटल एडजस्टमेंट। बस दैट्स इट, इतना ही तो है और क्या है। एंट्री इन द माइंड, पोस्टिंग इन द लेजर, ऐसे याद रखो। पहला एडजस्टमेंट कैपिटल ब्रॉट बाय कृतिका, एंट्री शुड बी, एंट्री बोलना याद रख के माइंड में बोलना चालू करो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो कैश बैंक में डेबिट अमाउंट इज 40,000, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कृतिका कैपिटल अकाउंट। हमने कैपिटल अकाउंट भी बनाया है, टू कृतिका कैपिटल।
दो इफेक्ट के बाद आगे जाना है। गुडविल ब्रॉट इन बाय द इनकमिंग पार्टनर 2500 रुपीज। तो हम दो एंट्री साथ में करते हैं, कैश बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट 2500, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल का मैंने लेजर नहीं बनाया है, जरूरत नहीं है, पूछा नहीं है। And goodwill account debit to old partner in a sacrificing ratio. So by goodwill account, sacrificing is also same. We have already calculated 3:1. तो 2500 डिवाइड बाई 4 करो, 1250 का आधा 625 इंटू 3 एंड इंटू 1। तो यहाँ पे तो सर 625 आएगा, मैं समझ गया। इंटू 3 करेंगे तो पीछे 75 आना चाहिए, और 6 3 18, आई थिंक 1875। वेरीफाई करो, ओरल कैलकुलेशन कितना फटाफट हो सकता है आप देख सकते हो। और दोनों का मिला के 2500 होना चाहिए, तो मतलब आपका परफेक्टली खाली हो गया, राइट। दो इफेक्ट दे दिया मैंने। गुडविल गुडविल गॉट कैंसिल। पहला एंट्री कैश बैंक टू गुडविल, सेकंड एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। डन। अब मैं बैलेंस शीट पे जा रहा हूं क्योंकि अभी रीवैल्यूएशन चालू होगा, राइट। पहला है आरडीडी, तो आरडीडी लेस फ्रॉम डेटर, रीवैल्यूएशन डेबिट। कितना परसेंट है आरडीडी? 5%। तो 3200 होना चाहिए। वेरीफाई करो। आरडीडी का अमाउंट 3200, take it as a debit to revaluation 3200। फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। फर्नीचर का अमाउंट 22 है, उसका 20% 4400। ओरल कैलकुलेशन, एंट्री विल बी असेट। जब घटता है तो लॉस होता है, लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट एंड एसेट विल बी क्रेडिट। तो एसेट में से लेस करो। वेरीफाई करना बच्चों। स्टॉक एंड मशीनरी अप्रिसिएशन हुआ है, अच्छा मतलब ऐड करना है, ऐड। स्टॉक 5%, मतलब 2000, एंड मशीनरी 20%, ओहो 12000, क्या बात। ऐड करना है, डोंट फॉरगेट। 2000 और 12000 स्टॉक एंड प्लांट ऐड करना है। एसेट जब बढ़ा तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। एक इफेक्ट ऐड किया एसेट में, दूसरा रिवैल्यूएशन क्रेडिट। 2 and 12। Are we done? I
थिंक ऑल एडजस्टमेंट्स आर ओवर. चेक करो कैपिटल एडजस्टमेंट एट द एंड, अभी नहीं. हाँ, तो रिवैल्यूएशन बंद करने जा रहे हैं हम लोग. I think credit side is heavier. Seven 600. So 6 400. Verify. क्योंकि क्रेडिट साइड हेवियर है, इसे हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोलेंगे. हाँ, नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब प्रॉफिट है. दो पार्टनर का नाम है मेधा राधा. होल्ड रेशियो 3:1. 4,800 and 1,600. वेरीफाई करो. 16 4s are 64. So 16 into 3, 16 into 1. Mental maths. करो, कोशिश करो. ट्रांसफरिंग प्रॉफिट्स टू कैपिटल अकाउंट. जर्नल एंट्री शुड बी, ये अकाउंट डेबिट हुआ है ना, रिवैल्यूएशन डेबिट, तो कैपिटल क्रेडिट. कितना सिंपल है. सो एंट्री शुड बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. 48 and 16. ये मेरा प्रॉफिट है. नाउ आई विल डू द कैपिटल एडजस्टमेंट. अभी आप यहां पे रुक जाइए. इतना लिखिए और रुक जाइए. देखो मुझे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में. देखो, the capital account of all partners be adjusted in the new profit sharing ratio by adjusting amount through loan account. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये जो न्यू कैपिटल चाहिए ना, ये न्यू कैपिटल आई विल कैलकुलेट बाय अप्लाइंग दिस कैपिटल एडजस्टमेंट. दिस इज न्यू कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस, और आप बोल सकते हो न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म. हाँ, ये मुझे चाहिए बाय अप्लाइंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो मैं यहां पे भी कैलकुलेशन कर सकता हूं. देखो, कृतिका को मैं क्लोज करूंगा तो आई गॉट द बैलेंसिंग फिगर इन कृतिका बीइंग द न्यू पार्टनर एज 40,000. वेरीफाई करो. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन एज 311. 311, राइट. तो 1 यूनिट, ये 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 40,000. तो दूसरा वाला 1 भी इक्विवेलेंट टू 40 होगा कि नहीं होगा. Comparative. And the third unit into 3, 40 into 3 has to be, ये मुझे न्यू कैपिटल मिल गया. दिस इमीडिएटली आई विल टेक टू बैलेंस शीट. ये समझ में आया. इसी चीज का मैंने वर्किंग भी बनाया है, वो भी मैं दिखाऊंगा. पहले इतना लिख लो. आप समझ के लिखना. जो वे से मैंने लिखा उसी वे को फॉलो करो. सब डायरेक्ट ब्लाइंडली कॉपी मत कर लो. मैंने पहले कृतिका को क्लोज किया, 40 करके बैलेंस 40 आया. फिर मैंने PSR लिखा 311. फिर 1 is equivalent to 40, then another 1 is 40, another 3 will be 120. लिखो. सेम वे, सेम मेथोडोलॉजी को आप फॉलो करो. अपने आप आपको लॉजिक सेट हो जाएगा दिमाग में, फॉर्मुलेट होगा. ये समझना इंपॉर्टेंट है. आपके लेवल पे ये एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट ऐसा ही कंफर्टेबल है. थोड़ा हायर लेवल पे हम फाउंडेशन में जाते हैं, सीए फाउंडेशन लेवल पे जाते हैं, तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग भी आता है डिपेंडिंग ऑन द वर्ड्स गिवन इन द क्वेश्चन. पर आपके लिए स्टेबल है, नॉर्मल है. जब हायर लेवल पे जाएंगे पढ़ने तभी हम देखेंगे क्या करना है. इसी चीज को मैंने नीचे अलग से भी वर्किंग बनाया है
यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट. कैपिटल एडजस्टमेंट आंसर सेम ही आया है, देखो वेरीफाई करो. कृतिका 3:1:1. कृतिका का बैलेंस अगर मैंने ये कैलकुलेट किया 1 इज इक्विवेलेंट टू 40, ये बैलेंस तो हमको पहले ही आ गया था ना. तो राधा का 1 विल बी हाउ मच, मेधा का 3 विल बी हाउ मच. दैट वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आप कैलकुलेट कर सकते हैं. सेम वर्किंग है, आपको अलग से लिखना है तो लिख सकते हैं. इफ यू हैव अंडरस्टूड दैट पार्ट देन दैट इज फाइन. ठीक है. ये तीनों कैपिटल जो मुझे मिला है, मैंने कैपिटल अकाउंट में जो लिखा हुआ है ये न्यू कैपिटल, आई एम गोइंग टू पुट इन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में छाप दो यहाँ पे. दैट वाज आई थिंक 120, 40 एंड 40. नाम है मेधा राधा कृतिका. मेधा राधा कृतिका. खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ. नाउ I had been told to adjust the balance with loan account. तो अब मैं वापस कैपिटल पे जाऊंगा. ओके. और बाकी के पार्टनर्स को क्लोज करने की कोशिश करूंगा. राधा को देखो क्लोज करो, क्रेडिट साइड इज हैवियर. और मेधा को भी क्लोज करो, क्रेडिट साइड इज हैवियर. चेक करो, ये मैं लोन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा. सो 44, 45, 46, 225 वेरीफाई करो. I want you all to do the calculation, math करो. Balance will be 6225. Similarly, 120, 132, 133, 137, 138, 675. Please verify. सारे बच्चे. So 18675. ओरल कैलकुलेशन कर रहा हूं, आप लोग को वेरीफाई करना है कॉन्स्टेंटली. राइट. ट्रांसफर दीज बैलेंसेस टू योर बैलेंस शीट एज लोन अकाउंट. वैसे लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि ये क्रेडिट बैलेंस है, लोन लायबिलिटी क्रिएट हुआ है, तो आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाएगा. शॉर्टकट अगर आपको करना है तो ऐसे याद रखो, आंसर लेफ्ट में आया ना तो बैलेंस शीट में भी लेफ्ट में लिखो. ये शॉर्टकट है, मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूं, बट कभी कभी वो वर्क करता है. जब बहुत शॉर्ट टाइम है, फटाफट आपको कंप्लीट करना है, तो ये वर्क करता है. आंसर लेफ्ट में आया तो बैलेंस शीट में लेफ्ट में लिखो. लेफ्ट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज नथिंग बट लायबिलिटी साइड, है ना. So 18675, 18675 loan account. That was Medha and Radha. कितना था राधा का, कितना था? राधा का अमाउंट है 6225. डोंट फॉरगेट कैश बैंक. फाइनली कैश बैंक को भी क्लोज कर लेते हैं, एंड देन योर बैलेंस शीट मस्ट टैली. So you have 120, 500 है, वेरीफाई कर लेंगे एक बार.
Transfer this to balance sheet. 1,20,500. कितना आ रहा है आंसर? 43 आ रहा है कि 44 आ रहा है? एक बार वेरीफाई कर लो, एक बार वेरीफाई कर लो, कोई बात नहीं। आई थिंक 344,900 आ रहा है, प्लीज वेरीफाई। फुल सॉल्यूशन ऑन द बोर्ड, एक बार वेरीफाई कर लो। पासिंग दी, आई मीन रिमेम्बरिंग दी एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आप लोग को बोला है कभी कभी बोर्ड में सिर्फ एंट्री पूछेंगे, आप लोग फंस जाओगे अगर एंट्री याद नहीं है तो। पूरा चैप्टर आता होगा आपको, लेजर पोस्टिंग सब आता होगा, लेकिन अगर एंट्री नहीं आता होगा फंस जाओगे। सो कॉन्स्टेंटली एंट्री इन द माइंड, पोस्टिंग इन द लेजर, एंट्री इन द माइंड, पोस्टिंग इन द लेजर, ये प्रोसेस रखोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट होगा। चेक करें।